in 10th English medium. Today we'll continue with the chapter number 8 of Science 1, Metallurgy. So in last lecture we have seen the introduction of metals, physical properties of metals as well as non-metals, and then we have started with the chemical properties of metal. Reaction, we have seen that the metal react with oxygen and many examples we have seen, and plus we have seen the metal react with water, okay, and different metals was reacting with the water, but some metal does not react with water like silver and gold, and lots of reaction we have seen on the basis of this. I hope you remember, you have seen the video. If you have not seen, please go and check my video. Okay, now today we will continue further in this chapter, okay, further part of this chapter, that is reaction with dilute acid. Now what is the meaning of dilute acid? Okay, now reaction with dilute acid. Now what is dilute acid? When you mix the water with the acid, okay, then it become dilute. Now here you see the four test tubes. In this first test tube there is a magnesium on reacting with acid. Okay, now yellow color you can see, that is an acid, HCl. When you put a magnesium piece in that, okay, it react with hydrochloric acid and it forms a magnesium chloride, and hydrogen gas is released. The bubbles which comes out, that is hydrogen gas in first test tube. Now in second test tube again there is an acid, HCl, and we have taken the aluminum piece. Now you can see when aluminum on reacting with HCl, it forms the aluminum chloride and hydrogen gas is released. Third test tube, again we have taken an acid, we have put a piece of zinc, reaction take place, zinc on reacting with HCl forms zinc chloride and hydrogen gas. And the fourth test tube, in that also there is an acid, we have taken a piece of iron and the reaction take place, and irons will react with hydrochloric acid. So in all the four test tube we have seen that all these metals, whether it is magnesium, aluminum, zinc or iron, they react with hydrochloric acid and they form the particular product, and hydrogen gas is released in all of these four test tube. Okay, next, reaction with dilute hydrochloric acid. So whenever metal react with acid, it forms the metal salt plus hydrogen gas is released. Okay, now what the demo which I have shown you right now, okay, so from this we can conclude that whenever the metal react with acid, it forms the metal salt plus hydrogen gas is released. Okay, so metal react with acid to release the hydrogen gas. Do all the metal react in the same manner? अभी तो हम लोग ने सिर्फ 4 ही मेटल मैंने आपको बताया, सभी मेटल ऐसे होते हैं क्या? No. If I talk about magnesium react with hydrochloride. Now let us write the chemical reaction. अभी तो हम लोग ने देखा था just a simple form कि magnesium हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है. अब हम लोग लिख के उसको समझेंगे केमिकल रिएक्शन को. So Mg plus HCl, that is hydrochloric acid, react and it forms the product magnesium chloride. Okay, इस तरह से लिखा जाता है magnesium chloride, MgCl2 plus hydrogen gas is released, that is H2. And you know this arrow indicate, ये जो H2 के बाजू में ये जो arrow है, this arrow indicate that the gas is going upward. Okay, now you can do the balancing. Then आप चेक कर लीजिए, is it clear? Balancing, Mg लेफ्ट में 1, Mg राइट में 1, हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 हो गया है, हाइड्रोजन राइट में भी 2 है, क्लोरीन लेफ्ट में 2 है एंड राइट में भी क्लोरीन 2 है. सो इट इज़ बैलेंस्ड. यस. नेक्स्ट, एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद द hydrochloric acid, it forms the aluminum chloride, that is AlCl3 plus hydrogen gas is released. Now same thing you have to do here also, balancing. Okay, so this is how the balancing is done. Okay, you can check the balancing. Reaction is important and balancing is also important with that. Okay, now if zinc react with hydrochloric acid, that is HCl, it forms the zinc chloride, that is ZnCl2, and hydrogen gas is released. Again here also you have to do the balancing. You can check the balancing. zinc लेफ्ट में 1 है, राइट में 1, H हाइड्रोजन लेफ्ट में 1 था, राइट में 2 था, तो इट बिकम्स 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. क्लोरीन लेफ्ट में 2 है, राइट में भी क्लोरीन 2 है, राइट.
Similarly for iron, when react with hydrochloric acid, it forms the iron chloride, FeCl2 plus hydrogen gas is released. Now can you balance this reaction? Please students, just try this balancing just now. किया बैलेंस आपने? चेक कर लीजिए whether you have done in this way only 2 you have to write on the left hand side. Okay, बाकी सब already balanced हो चुका है. So in the above activity the rate of formation of bubbles was faster in the case of magnesium. ये सभी रिएक्शन में हम लोग ने देखा कि सबसे ज़्यादा देखिए बबल्स तो चारों रिएक्शन में, चारों टेस्ट ट्यूब में बबल्स फॉर्म्स हो रहे थे, राइट, दैट इंडिकेट दैट द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. बट सबसे फास्ट बबल्स किस में फॉर्म हो रहे थे? सो इट वॉज फर्स्ट मैग्नीशियम, सेकेंड एल्यूमिनियम, थर्ड जिंक एंड फोर्थ आयरन. ठीक है, मतलब आयरन में लीस्ट बबल्स फॉर्म हो रहे थे. बबल्स फॉर्म हो रहे थे उसमें भी, लेकिन उसका जो स्पीड है बबल्स फॉर्मेशन का बहुत ही कम है. ठीक है, और सबसे फास्ट किस में बबल्स फॉर्म हो रहे थे? मैग्नीशियम में. सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, दिस वन. ओके, सो ये इंक्रीज होता है, जैसे मैग्नीशियम में हाईएस्ट है, फिर उससे कम एल्यूमिनियम में, फिर उससे कम जिंक में, और फिर उससे कम आयरन में. एंड इन दिस वे it goes on. Okay, so I hope it is clear this concept. Now reaction with dilute sulfuric acid. Now if I talk about the dilute sulfuric acid, so what happened? Metal when react with acid, it forms the metal salt plus hydrogen. Same general reaction इसमें भी same ही होने वाला, because hydrochloric acid वो strong acid था, और ये sulfuric acid है, ये भी dilute sulfuric acid है, ये भी एक acid ही है, but it is not a strongest acid. Okay, सो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. इफ़ आयरन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज द फॉर्मूला H2SO4. यू हैव सीन दिस, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू. लोअर क्लासेस में भी आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सल्फ्रिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा. ओके, ये डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड है. ओके, जस्ट वाटर इज एडेड इन दैट, इट बिकम्स डाइल्यूट. तो H2SO4 व्हेन दे रिएक्ट विद आयरन, ऑन रिएक्टिंग विद सल्फ्रिक एसिड, इट गिव्स द आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. सो प्रोडक्ट जो बनता है FeSO4 plus H2, hydrogen gas is released. Okay, so here also same thing is forming. One is metal, that is iron. Next is acid. Acid means what? Sulfuric acid. जो H2 acid है वो sulfuric acid है, H2SO4. Okay, when they react with iron, it forms the metal salt. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आयरन सल्फेट है ये एक मेटल सॉल्ट है, जहाँ पे आयरन एक मेटल है. ठीक है, और ये एसिड से बना है, इसके लिए उसे बोला है मेटल एसिड. एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. नाउ यू बैलेंस दिस रिएक्शन. इज इट बैलेंस्ड? ये इट इज सेल्फ बैलेंस, क्योंकि Fe लेफ्ट में 1 है, राइट में भी Fe1 है आयरन. H2 लेफ्ट में 1 है, H2 राइट में भी 1 है, SO4 लेफ्ट में 1 है और SO4 राइट में भी 1 है. सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस, इट इज सेल्फ बैलेंस. Now check this reaction. Zinc plus sulfuric acid, when it react, it forms what? Zinc sulfate ZnSO4 plus hydrogen gas is released. Okay, again it is balanced, only self balance. Magnesium when react with the sulfuric acid, it forms the magnesium sulfate and hydrogen gas is released. Okay, it is simple reaction. एक reaction आपको एक reaction का pattern अगर समझ में आता है तो बाकी सब reaction उसके similar हो जाते हैं. Okay, reaction with nitric acid. We have completed reaction with dilute hydrochloric acid. We have done with the reaction with sulfuric acid. Now we are doing the reaction with nitric acid. When metal react with nitric acid, hydrogen gas is not evolved. This is important point. You should know, whenever the metal react, any metal, okay, when react with HNO3, HNO3 means nitric acid. ये nitric acid का formula है. Hydrogen gas evolve नहीं होता. HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidize H2 into H2O. मतलब वो हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं. It gives oxidizing agent का मतलब होता है कि it gives oxygen. Okay, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो होता है H2O वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में, मीन्स इट गिव्स द ऑक्सीजन. itself reduced to the NO nitric acid, NO2 nitrogen dioxide, N2O nitrous oxide. Very dilute
HNO3 react with magnesium and manganese. Mg मतलब magnesium, Mn मतलब manganese. To evolve the hydrogen gas because very dilute HNO3 is a weak oxidizing agent which is not able to oxidize hydrogen into water molecule. ठीक है, हर एक जो HNO3 होता है, मतलब अगर HNO3 बहुत ही वेरी डाइल्यूट HNO3 मतलब आपने नाइट्रिक एसिड में बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग होना बहुत मुश्किल है. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. अगर डाइल्यूट कम है तो वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा. वन इम्पॉर्टेंट नोट, एक्योरेगिया. ओके, दिस इज़ देयर इन योर टेक्स्ट बुक. एक नोट बॉक्स में दिया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ है तो ये आप पढ़ के रखिए बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ एक्योरेगिया? इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, CONC का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, मतलब इसमें पानी मिक्स नहीं किया, कॉन्सेंट्रेटेड है वो. ठीक है, एक दोनों एसिड है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक नाइट्रिक एसिड है, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है. और उसको किस प्रोपोर्शन में लिया गया है? 3:1. मतलब HCl की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और HNO3 की क्वांटिटी जो कम है. तो 3 जो है वो HCl है और 1 जो है वो HNO3 है. ठीक है, 3:1 के रेशियो में लिया गया है. It is highly corrosive and fuming liquid. When you take in this way, okay, if you mix this, okay, it is very dangerous. You cannot do it at the home or lab. ठीक है, इसको बड़ी इंडस्ट्रीज में किया जाता है. It is highly corrosive and fuming liquid. इस तरह से इसका लिक्विड फॉर्म होने लगता है. आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो लैब्स होते हैं वहाँ पे ये किया जाता है. ठीक है, ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है. It can dissolve the gold and platinum. Why we are doing all these things? Why we are mixing the hydrochloric acid and nitric acid in the ratio of 3:1 to melt the gold and platinum? जैसे हम लोग ने पहले भी रिएक्शन में देखे थे कि गोल्ड और प्लेटिनम को मेल्ट करना आसान नहीं होता है. ओके, तो अगर आपको उसको मेल्ट करना है तो आपको ये टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा. ओके, देयर आर द अदर टेक्निक्स ऑल्सो बट दिस टेक्निक इज़ बेटर. जो ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड के, प्लेटिनियम के या सिल्वर के. ठीक है, सो दिस थिंग्स यू शुड नो. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स. नाउ दिस इज वन फिगर इज देयर जहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर द 2 टेस्ट ट्यूब. ओके, एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं कि कॉपर वायर है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है. ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है and second में iron sulfate solution. In this test tube we have put an iron nail. जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें आयरन नेल पुट किया है हम लोग ने. ठीक है, ऊपर कॉक लगा दिए. एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब में कॉपर वायर पुट किया है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में और वहाँ पे भी कॉक ऊपर लगा दिए. टेक अ क्लीन कॉपर वायर एंड एन आयरन नेल. Put the copper wire in a solution of iron sulfate and iron nail in the solution of copper sulfate. So reactions होते हैं, क्या reactions होते हैं that we'll see. Copper sulfate when react with iron because copper sulfate solution में iron nail है, right? तो अगर आप देखेंगे when copper sulfate react with iron nail, what reaction form? ऐसा reaction आपने पहले भी देखा होगा. Yes, you have seen in the chapter number 3. केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा है ये सब रिएक्शन. ओके, सो दिस इज नॉट न्यू फॉर यू. सो कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद आयरन इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. ठीक है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल में. ये लोअर क्लासेस में भी एक्सपेरिमेंट किए हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप आयरन नेल को रखते हैं कुछ समय के लिए तो आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का कवरिंग आ जाता है, कोटिंग आ जाता है. तो दैट रेडिश ब्राउन कलर इज नथिंग बट अ कॉपर. ओके, और सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है. सो दैट बिकम्स आयरन सल्फेट. सिमिलरली व्हेन आयरन सल्फेट रिएक्ट विथ कॉपर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. जब आयरन सल्फेट की सॉल्यूशन में जब आप कॉपर पुट करेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता. सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिविटी देन आयरन इट विल नॉट डिस्प्लेस द आयरन. क्यों? बिकॉज कॉपर जो है उसका रिएक्टिविटी पावर आयरन से कम है. अगर आपने लिस्ट में देखा होगा, ठीक है, तो आयरन पहले आता है उसके बाद कॉपर आता है. ठीक है, तो आयरन इज़ मोर पावरफुल देन कॉपर.
तो इसके लिए कॉपर रिएक्ट नहीं कर पाएगा आयरन के साथ, बट आयरन कैन रिएक्ट विद द कॉपर। ओके, आप देख सकते हैं ये रिएक्शन का जो सीरीज आपको ये लाइन में दिया गया है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आयरन यहाँ पे आपको दिख रहा है और कॉपर उसके नीचे है। देखिए आयरन के नीचे लेड है, लेड के बाद कॉपर आ रहा है। ओके, सो देयरफॉर iron can react with copper, but copper cannot react with iron. Chemical properties, metals and non-metals. This is just a note for you कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होते हैं तो उसे मेटल्स बोला जाता है। ऐसे एलिमेंट्स, अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है, वैलेंसी पता है, ठीक है, ये सब के बेस पे आप वैलेंसी या इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं हर एक एलिमेंट पे। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे, 2, 8, 1। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 1, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो आउटरमोस्ट शेल में, तो वो मेटल होते हैं, तो वो सोडियम क्या होगा, मेटल होगा। ओके, सो अगर 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस फॉर्म्स करते हैं, नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म्स द नेगेटिव आयंस। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म द मेटल सॉल्ट, while the non generally do not react with the dilute acid. Non metal generally do not react with the dilute acid. Non metals, कोई भी नॉन मेटल्स के साथ आप अगर एसिड पुट करते हैं, उसमें एसिड पुट करते हैं तो वो रिएक्शन नहीं होगा, जबकि मेटल का रिएक्शन होगा। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक एक्सेप्शन एल्यूमिनियम, Al2O3, जिंक ऑक्साइड, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके फिर से देख लीजिए कि वहाँ पे हम लोग ने देखा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। इट इज़ अ ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड ऑल्सो to give the salt and water, and it react with the base also to give the salt and water। ठीक है, तो सभी मेटल्स बेसिक होते हैं नेचर में, ओके, बट कुछ मेटल्स को छोड़कर, जैसे Al2O3 या जिंक ऑक्साइड, उनको छोड़कर, क्योंकि वो एम्फोटेरिक है, जबकि नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर ऑलवेज इन एसिडिक नेचर। So I hope it is clear till now here. Okay, now we are going to start with the basic properties. Okay, that is properties of ionic compound. This is important also because that will help you in the next chapter, in chapter number 9 कार्बन चैप्टर जो है उसमें भी आपको ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हेल्प करेगी स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर में भी है, 9 चैप्टर में भी है। ओके, यहाँ पे खाली प्रॉपर्टीज़ आपको दी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, विल स्टडी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट फॉर्म्स बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमेशा मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में ही फॉर्म होते हैं। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में वो ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं, बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे केरोसिन, पेट्रोल, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें डिजोल्व होना मुश्किल होता है। हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इट इज़ वेरी हाई। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ सॉलिड, हार्ड बट ब्रिटल। सॉलिड होते, हार्ड होते, बट वो टूट सकते। ओके, सो दिस आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड।